Hello students, welcome to the part B on the last minute revision on the differential equation. In this video, you will learn how you can identify the right approach to solve the problem and how you can start solving any differential equation in the 15-second time periods. Today's lecture is very beneficial for you if your target is to crack the CSR net with the JRF qualifications. Myself, Dr. Harishkar, you can follow and subscribe my YouTube channel. As you all know, we have already discussed the part A, how you can find the initial value problems related solutions, and that you can lecture found at my YouTube channel playlist last minute revision CSR net, and you can see the part A last minute revision of the differential equation is available. Apart from them, you can also see how you can attempt last minute 15 days, last 24 hours before the examinations, and many more lectures related to the last minute रिवीजन. आप एक बार इन प्लेलिस्ट को देखिए, सुनिए, डेफिनेटली योर कॉन्फिडेंस लेवल विल बी एट द टॉप ऑफ द लेवल. Today I will explain you how you can find the solution of the differential equations by using the Wronskian methods, by using the second order differential equations, by using the system of the equations and the boundary value problem. तो सभी के शॉर्टकट ट्रिक्स चारों टॉपिक के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे. जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. नाउ whenever you have seen any of the second order differential equation where a naught coefficient of the y double prime, p and q are my continuous function, then you can say the equation number 1 has always the two solution y1 and y2, and these two solutions are linearly dependent or linearly independent. How you can check about that whether the solutions are linearly dependent or independent? We can find the Wronskian of the solutions y1 and y2. Whenever you can say the y1 and y2 are LD, then the Wronskian is always 0. On the other hand, if the y1 and y2 are Li, then you can say the Wronskian is non-zero for all x. Remember the word for all x. एक और चीज याद रखो बच्चों, कन्वर्स ट्रू नहीं होता. That means whenever the Wronskian is my 0, you can never say the y1 and y2 are linearly dependent. And the most important point, the Wronskian does not changes the sign over the interval I. कभी भी अगर ये पॉजिटिव है किसी एक पॉइंट पे, अगर मैं कहूं कि Wronskian at some point x नोट इज माई लेस देन 0, तो Wronskian हर एक पॉइंट पे लेस देन 0 हो जाएगा, प्रोवाइडेड x नोट जो आपके पास है वो इस इंटरवल के अंदर लाई होना चाहिए. अगर वो पॉजिटिव है किसी इंटरवल किसी पॉइंट पे, देन वो हर पॉइंट पे पॉजिटिव हो जाएगा. क्लियर? Another important result is the Abel's formula. Fine, the Abel's formula is very important from the CSR or GATE examination point of view. How you can apply the Wronskian? Wronskian is denoted by W. W of x is Wronskian at some point e raised to power minus coefficient of the y prime divided by coefficient of the y double prime. Is it okay? चलिए अब स्टार्ट करते हैं. कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करता हूं मोस्टली रिसेंट ईयर. लर्न करिए ट्रिक्स कैसे सॉल्व करनी है. दे आर Li, ऑलरेडी Li गिवन है. दैट मीन्स y1 एंड y2 इज माई नॉन जीरो. क्लियर? देन Wronskian एट द पॉइंट. अच्छा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करता हूं मैं. अगर कहीं पे भी किसी, नॉट इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन, किसी पे भी अगर आपको एट द पॉइंट 0 y1 और y2 दोनों की वैल्यू गिवन हो, देन 100% क्वेश्चन को अप्लाई करिए Wronskian के साथ, तो आपका आंसर 15 सेकंड में डेफिनेटली आएगा. क्लियर? तो क्योंकि अब इस क्वेश्चन में भी आपको ये पॉइंट दे रखा है, तो मैं Wronskian से स्टार्ट करता हूं. तो Wronskian किसी पॉइंट पे निकाला है. आई विल अप्लाई द Abel's फॉर्मूला. W ऑफ x, Wronskian एट द पॉइंट 0 इज गिवन, e रेज टू पावर माइनस, इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा, 0 से लेके x तक, कोफिशिएंट ऑफ द y प्राइम डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ द y डबल प्राइम. फाइन, अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो. Wronskian एट द पॉइंट 0, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो दैट विल बी e रेज टू पावर हाफ log ऑफ
1 प्लस एक्स स्क्र, और जैसे ही आप लिमिट फिल करोगे 0 से x, 0 के अंदर 0 हो जाएगा, सो दैट विल बी w ऑफ नॉट रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र। अब आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है, किस पॉइंट पे निकालनी है, आपको हाफ पे निकालनी है। रोन्सकियन एट द 0 कितना होगा, रोन्सकियन की वैल्यू क्या होती है आपके पास, y1 एट द पॉइंट, y2 इट्स डेरिवेटिव। फाइन, तो फिल कर देते हैं। y1 0 इज 3, y2 इज -5, y1 प्राइम इज -1 2, और एट द पॉइंट हाफ 1 प्लस 1 ओवर 4, तो 6 - 5 is 1, root 5 divided by 2 is the right answer of the problem. Look at the next one. Again you can see कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं ना, तो रोन्सकियन से निकालिए हमेशा, और आपको रोन्सकियन एट द पॉइंट, फिर से एबल्स फॉर्मूला लगाते हैं। रोन्सकियन एट द पॉइंट x इज रोन्सकियन एट द पॉइंट 0 e रेज़ टू पावर -0 to x, कोफिशिएंट ऑफ द y प्राइम, कोफिशिएंट तो है ही नहीं आपके पास, तो दैट्स विल बी द 0। तो व्हाट डज इट मीन्स, e रेज़ टू पावर 0 इज 1, रोन्सकियन एट द पॉइंट x मस्ट बी इक्वल टू रोन्सकियन एट द पॉइंट 0। अब आप फिल कर देते हैं एट द पॉइंट हाफ, तो ये वैल्यू 4 हो गई। रोन्सकियन एट द 0 इज 3 -1 -5 a, तो कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ द a, 3a - 5 is equal to 4, तो that will be 9 is equal to 3a, a will be my 3 is the right answer। तो आप देखिए इस दिसंबर 2025 बोथ ईयर्स, तो कितने 15 सेकंड में आप इसे सॉल्व कर सकते थे। लुक एट द नेक्स्ट वन। अगेन योर टारगेट इज रोन्सकियन किसी एक पॉइंट पे दिया हुआ है, आई कैन अप्लाई द एबल्स फॉर्मूला। रोन्सकियन एट द पॉइंट 1 e रेज़ टू पावर माइनस, अब आपका 1 पे गिवन है तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to x हो जाएगा। 90% स्टूडेंट गलती कर देते हैं, यहां पे 0 लिख देते हैं। 0 नहीं लिखना, जिस पॉइंट पे आपको गिवन है वो लिखोगे। कोफिशिएंट ऑफ द y डबल प्राइम माइनस डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ द y डबल डैश, तो ये कितना हो जाएगा, x और x कट गया, माइनस माइनस प्लस, रोन्सकियन एट द 1 इज 1, e रेज़ टू पावर माइनस माइनस प्लस 2 over x is a twice of log x, so e रेज़ टू पावर that will be x square, सॉरी पहले लिमिट्स फिल कर देना। सो e ऑफ 2 log x फ्रॉम 1 to x, तो कितना हो जाएगा, 1 पे 0 हो जाएगी, सो e रेज़ टू पावर 2 log x, तो ये कितना हो गया आंसर, दैट विल बी माई x स्क्वायर। फाइन, वाई, अगर किसी को नहीं मालूम सो आई कैन राइट एज x स्क्वायर एंड e एन log विल बी, सो w ऑफ x मिल गया आपको। तो क्या पूछा आपसे, 3 - 2 9 - 4 5 इज दी right answer of the problem. Okay, look at that. Y prime is there exist a continuous functions defined such that Wronskian is given to be. तो क्या प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको, Wronskian does not changes the sign। एक तो ये बताई थी मैंने आपको, does not change the sign, और सेकेंडली अगर Wronskian किसी एक पॉइंट पे 0 है at some x naught belongs to the interval, fine, that implies Wronskian must be 0 for all x in the interval। ठीक है जी, यही तो टिप्स में तो होता है ना आपके पास, तो अब अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट पे देखते हैं, ये कभी 0 जाएगा, लुक एट दैट, एट t इज इक्वल टू हाफ Wronskian वैल्यू विल बी 0। फाइन, तो क्या Wronskian 0 है for all the t belongs to the interval of 0, 1? No, आप कोई भी पॉइंट ले लो, लेट्स से t is equal to 1, तो Wronskian is a non-zero, that's wrong। फाइन, क्यों, क्योंकि किसी मतलब क्या कि अगर Wronskian किसी एक पॉइंट पे 0 है तो सभी पे 0 होगा, अगर नॉन जीरो है तो सभी पे ही नॉन जीरो होगा। फाइन, लुक एट दैट नेक्स्ट पॉइंट, क्या ये कभी 0 हो सकता है? Yes, if you take t is equal to 1, so clearly say Wronskian is 0. But if you take t is equal to 1 by 4, clearly say Wronskian is my non-zero. Because 1 by 4 पे कितनी हो जाएगी? Sin pi by 2. Sin pi by 2 is a non-zero. So that means this option is also cancel out. Similarly, look at the cosine. Cosine की वैल्यू 0 कब होती है? 0 पे, pi by 2 पे. So I can take in t is my 1 by 4. Clearly say the Wronskian is 0, while whenever t is not equal to 1 by 4, Wronskian is again non-zero. तो ये वैल्यू भी आपके पास कैंसिल हो गई।
और आप यहां पे देखो Wronskian of t can never be 0, तो इसका मतलब that is always the same for each case, so D is my right answer. Look at the next one. P is a continuous function, W is the Wronskian of the linearly independent variables. चलिए किसी एक पॉइंट पे दिया हुआ है, एबल्स फॉर्मूला लगा लेते हैं. मैं बार बार कह रहा हूं एक ही अप्रोच लगाऊंगा, चाहे वो ईयर 2015 है, चाहे वो 2011 है, चाहे 2014 है, चाहे वो 2025 है. मजा तो तभी है ना जब आप एक ही अप्रोच से हर ईयर के पेपर सॉल्व करिए, और आपने हर अप्रोच बदल दी हर क्वेश्चन के लिए. दैट इज नॉट द गुड वे टू लर्न द प्रोसेस. नाउ at some point say x naught e raised to power minus 1 plus x square. What is the integration of the 1 plus x square? Is x plus x cube by 3. अब आप देखो यहां पे वैल्यू नहीं पूछ रहा, you have to take about the sign. Clearly say exponential part is always greater than 0. That means always a positive. That means you can say the sign of the wx is dependent totally on the wx naught. Fine. The sign, only for the sign. Fine. अब आप देखो एक रूल क्या बताया था मैंने अभी आपको, Wronskian does not changes the sign, ये तो बताया था मैंने आपको, शॉर्टकट टू x. तो इसका मतलब if a is my positive then b must be positive, c must be positive, or if a is my negative then b must be negative, then c must be negative. तो पहला ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया. क्लियर. थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो कैंसल. यू कैन सी इन दिस केस a is less than b but b is greater than c. ओके ना, ये तो पॉजिटिव है ना सारे, ये हो सकता है आपके पास. फाइन. अब आप देखते हैं इसके अंदर क्या है. नाउ व्हाट इज द w ऑफ x नॉट, एनी वैल्यू ऑफ द a b एंड c. अगर मैं ये ले लूं कि a is my less than 0, फाइन, दैट मीन्स w of x is negative. तो अगर मैं ये कहूं कि 1 is less than 2 is less than 3, दैट मीन्स either the Wronskian is my increasing or Wronskian is my decreasing depending upon the sign of w of x naught. तो अगर आपका डिक्रीजिंग है, पहले Wronskian आप डिक्रीजिंग ले लो, तो whenever 1 is less than 2 less than 3, तो Wronskian कितना हो जाएगा अगर डिक्रीजिंग है, तो Wronskian 1 is greater than 2 is greater than of Wronskian 3. That means a must be greater than b is greater than c. फाइन. वैल्यू कुछ भी हो. और सेकंड केस अगर Wronskian आपका ग्रेटर देन है, दैट मीन्स द Wronskian इज इंक्रीजिंग, दैट इंप्लाइज अगर इंक्रीजिंग का तो ये नेचर हो जाएगा. फाइन. दैट मीन्स a is less than b is less than c, so therefore b is my right answer. क्लियर. अब इसके बेस पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बिकॉज यहां से क्या कह रहा है, a is less than b and b is greater than c. दैट्स wrong because they have must the same sign. चाहे तो सारे लेस देन के हो जाएंगे, चाहे सारे ग्रेटर देन के हो जाएंगे. एंड लुक एट द ऑप्शन सी. ऑप्शन सी में क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द a ओवर mod a? It's always the plus 1, fine, or minus 1. That's always the same sign, so that's always be the plus minus 1 depending upon whether they are increasing or decreasing. Right answer is b and c are the correct answers. चलिए look at the next one. Again देखो किसी एक पॉइंट पे दे रखा है, I can apply the Wronskian. So Abel's formula लगाइए. Wronskian at the point 0, e raised to power minus इंटीग्रेशन करेंगे 0 to x कोफिशिएंट ऑफ द y प्राइम डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ द, ये बाहर माइनस था, tan ऑफ x. तो कितना हो गया इंटीग्रेशन ऑफ द tan x इज log ऑफ cos x. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 to x. 0 पे वैल्यू cos 0 इज 1, log 1 इज 0, सो दैट विल बी log ऑफ cos x. फाइन. नाउ Wronskian एट द पॉइंट 0 निकाल लो, y प्राइम डैश माइनस √2 एंड 2, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई cos ऑफ x. नाउ योर टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यूज एट π/4, सो दैट विल बी 2 into √3 is 1/√2, so 3c is the right answer of the problem. Okay, look at that. It's a Feb 2022
consider the second order differential equation. Which of the following statement is true about the Wronskian? W changes the sign. पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया because I already tell you Wronskian does not changes the sign. Wronskian is 0 implies they are Li. That's wrong. अगर Wronskian 0 है then you can never say they are Li always. Fine. W is 0 for some or 0 in the interval a comma b. For some अगर ये किसी एक के लिए 0 है इंप्लाइज सभी के लिए 0 होना जरूरी है. दैट्स ट्रू. अगर ये किसी एक के लिए नॉन 0 है तो सभी की वैल्यू नॉन 0 होगी लेकिन सेम वैल्यू होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है. फाइन. सो द राइट आंसर इज सी इज द राइट आंसर. लास्ट ऑप्शन बच्चों क्या कह रहा है कि अगर ये नॉन 0 है किसी एक पॉइंट पे अल्फा, दैट इज अ नॉन 0. फाइन. दैट मीन्स W ऑफ x इज ऑल्सो नॉन 0 बट ये इक्वल टू अल्फा होगा सेम वैल्यू, इसकी कोई गारंटी नहीं है. इट कैन बी बीटा, इट कैन बी रूट ऑफ अल्फा एंड सो ऑन, बट इट शुड बी नॉन 0. दैट्स फाइनाइट. फाइन. हाँ, अगर यहां पे ये लिख देते इट इज अ नॉन 0 तो भी सही हो जाता. क्लियर. तो राइट आंसर इज ओनली माई सी इज द करेक्ट आंसर. फॉर मोर, बिकॉज अभी देखो बच्चों मैंने इसमें सभी क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर सकता था ना, बिकॉज लास्ट मिनट रिवीजन है, मेरे को बाकी टॉपिक भी कवर करना है, तो मैंने सभी एक एक टाइप के सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए. फॉर मोर डिटेल्स अबाउट 25 प्लस क्वेश्चंस ऑन ओनली ऑन द Wronskian, तो आप मेरा ये लेक्चर सुन सकते हो, वो इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा लास्ट मिनट रिवीजन लेक्चर के साथ. चलिए अब सेकेंड टॉपिक पे ऊपर मूव करते हैं. वेन एवर हाउ यू कैन फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस. सबसे पहले देखो फिर से ये दे दिया आपको, इससे क्या मीनिंग हुआ आपका, यू कैन अप्लाई द Wronskian. फाइन. Wronskian लगा सकते हो ना, तो एबल्स फॉर्मूला लगा दें फिर से. Wronskian एट द पॉइंट x इज Wronskian एट द पॉइंट 0, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी, e की पावर माइनस कोफिशिएंट ऑफ द y प्राइम divided by coefficient of 1, so that will be sine of x. So e की पावर minus sin x which is always my non-zero. Clear. अब देखो अगर तो these are the solution. अगर Wronskian non-zero है that means phi 1 and phi 2 are my Li. Once it is Li, what does it means? You can write as a linear combinations of their solution. That will be my y. ऐसे तो लिख सकते हैं ना, where C1 and C2 are my any arbitrary constants. Is it okay? क्योंकि यहां पे इंडिपेंडेंट नहीं दे रखा आपको. क्लियर. तो वो उसको कैसे प्रूफ करोगे, बाय Wronskian कंसेप्ट से. नाउ यू कैन सी. अब आपको ध्यान से देखिए क्या आपसे सोल्यूशन पूछा है कि सोल्यूशन क्या होगा इसका. whether the solution is exponential, whether the sin x, whether the 1 plus 2x by 2 and so on. ये तो नहीं पूछा ना सोल्यूशन, तो निकालने की जरूरत भी नहीं है, टाइम वेस्ट मत करिए. लुक एट द कोफिशिएंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. कोफिशिएंट आपके पास क्या है, एक तो 1 है, cos x है एंड sin x है. व्हाट कैन यू से अबाउट द 1 cos x एंड द sin x. ऑप्शन में अगर देखो तो कभी भी आप x प्लस 2 पाई, x प्लस 4 पाई एंड सो ऑन, तो देखते हो क्या चीज दिमाग में आती है. व्हाट कम फर्स्ट थिंग इन योर माइंड इज अ पीरियोडिक. फाइन. एंड यू कैन सी द कोफिशिएंट्स आर माई पीरियोडिक. तो जब आपके कोफिशिएंट्स पीरियोडिक हैं देन whatsoever the solution you have obtained that will also my periodic solution. Fine. तो अगर इसका phi 1 is the solution which is my periodic. Fine. साइन को साइन में आपका, तो that means x plus 2 pi is also my periodic solution. x plus 4 pi is also my periodic solution. Now look at the fourth option and the third option. थर्ड ऑप्शन को मैं phi of x भी लिख सकता हूं ये चीज, बिकॉज x plus 4 pi is a periodic. I can also write this number is in terms of here. Clear. अब आप देखो a and b are my any real numbers, तो c1 and c2 are my arbitrary constants. Then I can write y is the solution, that is a phi 1 or phi 2 can be written as a linear combinations of the phi 1 and phi 2. But he said there exists no constant. That's a wrong option. So 1, 2 and 4 are my right answer of the problem.
देखिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन नहीं पूछा, क्या आपसे पूछा आपका सॉल्यूशन क्या होगा? नो, सॉल्यूशन के फॉर्म में क्या बोला? पीरियोडिक के बारे में। तो आपने कोफिशिएंट क्या देख लिया? पीरियोडिक है। तो अगर पीरियोडिक है तो आपके पास सॉल्यूशन भी आपका पीरियोडिक ही आएगा। लाइक कर दो बच्चों जल्दी से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारी वीडियोस आपको वेट कर रही हैं आपके साथ भी। चलिए, फॉर द कंटिन्यूस फंक्शन क्यू कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। ओके, सो देखो आपके पास सॉल्यूशन क्या आपके पास है। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, फाइन, इसका पहली बात, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन? ऑर्डर इज माई ट्रू। तो कितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स आएंगे? देयर आर मस्ट बी 2 आर्बिट्री कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। नाउ लुक एट द फर्स्ट केस। क्या कह रहा है? कहता कोई ऐसा क्यू एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से इसका कोसेक्स एंड ई की पावर एक्स कोसेक्स इसका सॉल्यूशन हो जाए। मान लेते हैं कि ऐसा कोई क्यू एग्जिस्ट करता है जिसमें इसका सॉल्यूशन ये है, एंड वी ऑल नोस जब भी कोसेक्स होगा तो साइन एक्स भी उसका सॉल्यूशन होगा ही होगा। तो ये सॉल्यूशन कब बनेंगे? जब आपके पास m, जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, m की वैल्यू क्या आनी चाहिए? प्लस माइनस आयोटा, तभी तो बनेगा ना। और अगर ये सॉल्यूशन होगा तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? m की वैल्यू, m इज माई 1 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, तो कितनी वैल्यू होगी m की आपके पास? यहां से m इज माई 4 प्लस आयोटा माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। तो अगर m की वैल्यू 4 है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा? 4 होगा ना। तो यहां तो लेकिन 2 ऑर्डर है, इसका मतलब दैट स्टेटमेंट इज माई फॉल्स। तो पहला ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो गया। क्लियर? नाउ सेम लॉजिक से हम बाकी सारे ऑप्शन भी चेक करते हैं। सेकंड, साइन एक्स एंड कोस एक्स। तो अगर साइन एक्स है तो कोस एक्स भी होगा, द सॉल्यूशन विल बी प्लस माइनस आयोटा, दैट इज ऑल्सो द सेम। सो व्हाट इज द m? m is my 2, fine, and that's the order. So yes, it is possible, but we need a false statement, that's a wrong. तो किसके corresponding possible है? If you simply take q is equal to 1 तो आपको मिल जाएगा ना solution. Now look at the third option. Third option says e की power x sin x, e की power x cos of 2x. The corresponding auxiliary equation root is 1 plus minus iota. The corresponding root is 1 plus minus 2 iota. How many m you have obtained? M is my 4, but we need order is 2. That's a false statement, and once the false statement, my option is correct. Look at the last option, x into ex, and I can open that, let's say x square minus x into e की power x. That's a polynomial. So it look like say that c0 plus c1x plus c2x square of e की power x. ऐसे तो है ना आपके पास। तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या आएगी इसके कॉरस्पॉन्डिंग? 1 1 एंड 1, यही तो आएगी ना आपके पास। इससे रेपिटेशन रूट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द m? देयर आर द 3, but we need a second order. That's a false statement. Therefore the right answer is 1 3 and 4 are my correct answers. बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको इतनी शॉर्टकट ट्रिक्स कोई और नहीं बताएगा आपको। चलिए, गिवन दैट y1 is one of the solution, y2 is another solution and your target is to obtain it. देखिए बच्चों, पहली बात, अगर ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, फाइन, तो एक ही ऑप्शन सही है ना। तो एक ऑप्शन में देखो आपके पास y2 इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में से ही सही होगा कोई, फाइन। तो बी और डी ऑप्शन तो आप डायरेक्टली डिस्कार्ड कर सकते हो आप, क्योंकि पार्ट बी का ना, ये पार्ट सी होता तो अलग बात होती, फाइन। चलिए, अगर मैं इसको पार्ट सी के हिसाब से सॉल्व करता हूं तो क्या क्वेश्चन क्या है? इट्स वेरी सिंपल, मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स पहले दे रहा हूं। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेट्स से ए नॉट वाई डबल प्राइम प्लस पी वाई प्राइम प्लस क्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, इज इट फाइन? एंड one solution is known to you, one is known, then how you can find the second solution? I can find the second solution by using the formula is y1 integration of y1 square e raised to power minus p over a naught into dx. फाइन। अब आप देखो y1 कितना आपका e की पावर 2x, इफ आई सब्सटीट्यूट हेयर e की पावर 2x,
1 over e की पावर 4x e raised to power minus minus plus 3 plus 4x divided by x. If you integrate them, that is a 3 of log x plus 4x into dx. e की पावर 4x cancel हो जाएगा. That will be my x cube. Integration of the x cube will be x4 over 4. Fine. That is my y2. Clear? Now look at that. अगर आप x approaches infinity करते हो, that will goes to the infinity. But e की power, that will be, now if you calculate e की power minus of 2x into y2, so that will be my x4 divided by 4. Again it goes to the infinity, but यहाँ क्या रहा है 1, so the B option is cancel. He said goes to the 0. Second option is also cancel out. Fine. Now your target is to check whether it's increasing or decreasing. So आप इसका डेरिवेटिव कर देते हैं. y2 आपके पास क्या आया है, इसे x4 e की पावर 2x divided by 4. Now you can find the derivative. Fine. So it's a 4x cube e raised to power 2x plus twice e की power 2x into x4 by 4. So you can see that 2 is common, x cube is common, e की power 2x is common, divided by 4 is common. So that will be 2 plus x. यही आ रहा है आपके पास 2 plus x. Now as x approaches, x is my positive. So whenever x is my positive, find that number is always greater than 0. क्योंकि ये भी आपका पॉजिटिव है, x cube is always positive. So y2 prime is strictly greater than 0. That means y2 is my increasing. So the C option is cancelled. A is the right answer of the problem. Is it okay? Chaliye, look at that next one. y1 and y2 are the two different solution of the ordinary differential equations. Which of the following is the general solution? चलिए जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है? We all knows that will be c1 y1 plus c2 y2 लिखते हैं ना. फाइन. बट ये कब लिखते हैं? ओनली फॉर द होमोजीनियस केस वेयर c1 and c2 are my any arbitrary constant. बट अगर आप यहां देखो, द सिस्टम और द डिफरेंशियल इक्वेशन इज माई नॉन होमोजीनियस. राइट हैंड साइड जीरो नहीं है ना आपके पास. क्लियर? Once it's a non-homogeneous, then you can say this system is the general solution of the non-homogeneous. If C1 plus C2 must be 1 and C1 and C2 is the part of the real. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, then you can say yes, it is a general solution. अब आप देखो, C1 and C2 are the part of the R, पर क्या C1 plus C2 1 भी कहा इन्होंने? नहीं कहा. So that is not the general solution. यहां तो कुछ भी हो सकता है ना. You can choose C1 is 4, C2 is equal to 9 or minus 9, तब ये आपका 1 नहीं होगा. Look at the second one. What is the coefficient of the y1? 1 plus c. Coefficient of the y2 is minus of c, and c is the part of the R, and you can see the sum is my 1. Yes, it's a part of the general solution. Look at the second one. Coefficient of the y1 1 plus c. Coefficient of the y2 is minus 1. So that the sum is my c, but which is not always 1. So that option is also cancelled. Coefficient of the y1 is c1 plus c2. Coefficient of the y2 is c1 minus c2. And clearly say 2 of c1 is not equal to 1 always, because these are the part of the R. So that means the right answer is B is the correct answer. Now you can see the third part, how you can find the indicial equations. बच्चों, that's a very very important question. Fine. जब भी आपको like इस तरह के क्वेश्चन दिखाई दे, आपको सोल्यूशन निकालना हो आपको, फाइन, how you can find the solution in just a 5-second time periods, you can use my this shortcut tricks. P of x y double prime plus qx y prime and so on. Then you can write the initial equation is r minus 1 plus h1 r plus h2,
where h1 is defined as x minus x naught, coefficient of the y prime divided by coefficient of the y double prime. h2 is my x minus x naught square rx over px. Fine. After solving the solution, you will get the 2 points r1 and r2. Therefore, the solution becomes y is equal to c1 x की पावर r1 c2 x की पावर r2. फाइन. फॉर मोर डिटेल्स, फाइन, तो आप डिटेल के लिए आप मेरे 2 लेक्चर सुन सकते हो यहां पे. एक तो आप ये स्टडी स्टेट वाला लेक्चर, फाइन, और दूसरा लेक्चर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मैं आपको बाद में दिखाता हूं कहां पे. चलिए अब आप ये देखिए, क्या ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल है? बिल्कुल है. तो आप इसको क्विकली से लिख दो, r माइनस 1 प्लस, क्विकली फाइंड करो h1. लिमिट्स लगानी है x अप्रोचेस 0 पे, x अप्रोचेस 0, कोफिशिएंट सॉरी x माइनस 0 इज x इंटू कोफिशिएंट ऑफ y प्राइम डिवाइडेड बाय, सो कितना आंसर हो गया ये, -4 इंटू r प्लस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दो लिमिट x अप्रोचेस 0, 6 ओवर x स्क्वायर, दैट विल बी 6 इज इक्वल टू 0. सो कैन यू सॉल्व देम? -5r प्लस 6 इज इक्वल टू 0, r विल बी 3 and 2. अच्छा, अगर आप सोच रहे हो बच्चों सर कि ये क्वेश्चन तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो कॉची आइलर से, यस यू कैन डू दैट. आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो. यू कैन राइट डायरेक्टली m स्क्वायर, इसमें से 1 माइनस कर दो 5m और प्लस 6, तो देखो सेम इक्वेशन बनी है आपके पास. फाइन. बट हर मेथड को सेम अप्रोच से सॉल्व करिए, दैट यू कैन गेट दिस सॉल्यूशन इजिली. तो आपका सॉल्यूशन क्या बन गया? 3 and 2 है, सो दैट विल बी c1 x क्यूब c2 x स्क्वायर. फाइन. अब निकाल लो, 2 पे वैल्यू 0 है आपके पास, 8c1 4c2 इज इक्वल टू 0. डेरिवेटिव करो 2 पे, 3x स्क्वायर, 4 3 12 और 2x, दैट इज 4 ऑफ c2 इज 4. तो माइनस करोगे, c1 विल बी माई माइनस ऑफ 1, तो जैसे c1 -1 हो गया, c2 विल बी c1 इज अ +1, देन इज अ माइनस ऑफ 2. तो आपका फाइनल सॉल्यूशन क्या बन गया? दैट इज x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर. अब किस पॉइंट पे पूछा आपसे? 4 पे, तो 64 4 16 32. So the right answer is 32 is my correct answer. चलिए फिर से ये देखिए, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप लिखो r माइनस 1, इसका h1 निकालो, x के साथ मल्टीप्लाई करो, कोफिशिएंट ऑफ द y प्राइम डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ द y डबल प्राइम, तो कितना हो गया? 0. सिमिलरली 4x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करिए, तो कितना हो गया? -2. फाइन. तो क्या आंसर हो गया? आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो आर की वैल्यू क्या आ गई? एक 2 आ गई और एक -1. तो आपका सोल्यूशन क्या बन गया? c1 एक्स स्क्वायर c2 एक्स की पावर -1. नाउ इफ यू लुक अबाउट द इनिशियल कंडीशन, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, दैट मीन सिर्फ यही बनेगा ना आपके पास, एंड विच इज अ पॉलिनोमियल, सो देयरफॉर आपके पास सॉल्यूशन क्या हो गया? एक्स स्क्वायर. फाइन. बिकॉज y ऑफ 0 इज 0 है, तो यहां डिफाइन नहीं है, दैट इंप्लाइज c2 मस्ट बी 0. फाइन. एंड फाई ऑफ 1 मस्ट बी 1. तो आप किस पे पूछे? आपसे पास 4 स्क्वायर 16 ट्रू, 2 स्क्वायर 4 होना चाहिए, 5 स्क्वायर इज 25, 3 स्क्वायर इज 9. सो आंसर इज A एंड C आर माई करेक्ट आंसर्स. चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन, द सॉल्यूशन ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम. अगेन इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो. फाइन. दैट विल बी x y डबल प्राइम प्लस y प्राइम माइनस 2y प्राइम प्लस y ओवर x इज इक्वल टू 1. तो सिंप्लीफाई कर लो, दैट्स x स्क्वायर y डबल प्राइम माइनस एक्स वाई प्राइम प्लस y इज इक्वल टू x. यही आएगा ना. अब यहां पे फिर से लगा दो r माइनस 1, तो इसको x के साथ मल्टीप्लाई करके करेंगे, दैट्स -1, और x स्क्वायर के साथ करेंगे, दैट्स +1 विच इज 0. तो ये कितना हो गया? x स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो r इज माई 1 and 1. फाइन. तो जैसे 1 और 1 आया, तो आपका सोल्यूशन क्या बन गया? c1 c2 ln ऑफ
x इंटू एक्स की पावर, रेपिटेशन है ना, तो रेपिटेशन में ln x ऐड करते जाओगे. बिकॉज द राइट हैंड साइड इज नॉन जीरो, सो यू कैन राइट द yp. I can write this number is r square or r minus 1 whole square into x की power 1. Now clearly say 1 is the root of the auxiliary equations. तो दो बार है ना, तो दो बार डेरिवेटिव कर दो इसे, ऊपर x स्क्वायर लगा के. अब यहां x नहीं लगेगा, क्या लगेगा आपका ln x. फाइन. और इसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव कर दो, दैट विल बी 2 इंटू एक्स इज माई yp. तो फाइनल आपका सोल्यूशन क्या मिल गया? So your solution will be C1 plus C2 ln x into x plus x into ln x square divided by 2. फाइन. अब आप निकालो आंसर इसका कितना हो गया. क्या पूछा गया आपसे? ई पे पूछा आपसे आंसर. अच्छा, y ऑफ 1 इज 0, तो log 1 0 हो जाएगा आपका, log 1 0 हो जाएगा, तो C1, तो यहां से आ जाएगा C1 विल बी 0. फाइन. अब जैसे C1 0 है तो e की पावर 4 फिल कर दो. 4 e की पावर 4 इज y. C1 इज माई 0. e की पावर 4 दैट्स 4 C2 e की पावर 4 प्लस e रेस्ट टू पावर 4 इज 4 स्क्वायर इज 16. 16 बाय 2 इज 8. तो यहां से C2 कितना हो गया आपके पास? C2 इज माई -1. तो फिल कर दो. फाई ऑफ e निकालो. फाई इज माई सोल्यूशन, तो y मतलब फाई ऑफ e. C1 तो 0 ही है, C2 की वैल्यू -1. ln ऑफ e इज 1 इंटू e प्लस e. ln ऑफ e इज 1 इज माई 2, सो दैट इज अ माइनस e over 2 is the right answer of the problem. चलिए look at the next one. Again you can apply the same rule. r minus 1 h1 करो, x plus x square divided by 2x square. फाइन. अगर इस पूरे से आपको डिवाइड करना है, क्लियर, इस पूरे से आपने डिवाइड करा और साथ में मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ, कितनी लिमिट आ गई? एक x कैंसिल हो गया, एक कॉमन निकाल के x कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 दैट्स अ -12. सिमिलरली इसके लिए करोगे, x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो एंड देन डिवाइडेड बाई कंप्लीट कोफिशिएंट ऑफ द y डबल प्राइम. सो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट x इज 0 दैट विल बी -1. तो करो एलसीएम. इस r स्क्वायर इस ट्वाइस r स्क्वायर माइनस r minus 3r minus of 2 is equal to 0. So can you factorize them? तो कितने फैक्टर आ गए इसके? एक तो आपका 2 हो जाएगा और एक -12 हो जाएगा. इसका मतलब, और फाई 1 किसको लेना है? जिसकी वैल्यू, इसके दो सोल्यूशन बनेंगे ना आपके, C1 x स्क्वायर एंड C2 x की पावर -12. लेकिन फाई 1 कौन सा है आपका? फाई 1 वो है जिसपे 0 इज इक्वल टू 0 जा रहा हो. तो फाई 1 इज माई x स्क्वायर और फाई 2 इज माई x की पावर -12. फाइन. अब ये दोनों आंसर आप अपने ऑप्शन में फिल कर दो. आप क्या बन गया? x की पावर n फाई 2, सो दैट विल बी x की पावर 5/2. नाउ व्हेन यू टेक लिमिट x अप्रोचेस 0, सो दैट इंप्लाइज n -5/2. अब ये 0 कब आएगी लिमिट? 0 तो तभी आएगी whenever n -5/2 is my greater than or equal to 1. नहीं, 0 पे तो ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. फाइन. अगर ये x की वैल्यू 0.1 भी होगी तब भी तो 0 हो जाएगा ना, तो इसका मतलब n की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन ऑफ 5/2. अच्छा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका इंटीजर क्या आएगा? 3 तो आएगा ना. ये 2.5 से ग्रेटर देन, तो कौन सा स्मॉलेस्ट इंटीजर है? फाइन, पॉजिटिव इंटीजर, दैट्स 3 इज द राइट आंसर. अब आप देखो, दिस इज द गेट 2020 और ये आपके पास है लास्ट दिसंबर 2025. सिमिलर क्वेश्चन नहीं है. फाइन. तो अप्रोच भी सेम लगाऊंगा आपके लिए मैं. लगाओ फिर से. सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल है r -1. इस वाली लाइन को x से मल्टीप्लाई करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ द y प्राइम. फाइन. और इसको डिवाइड कर देंगे कोएफिशिएंट ऑफ द y डबल प्राइम. x स्क्वायर लिमिट x अप्रोचेस 0 दैट विल बी हाफ. अब इसके साथ करेंगे -3/2 इंटू कोस एक्स डिवाइडेड बाय, इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई,
divided by coefficient of the y double prime. So as x approaches 0, it flies. Now you can take the LCM. 2r square is a minus of 2r plus r is a minus r, minus 3 is equal to 0. So can you factorize them? So it's a 3 and 2. So 3 by 2 and minus 1. y2 इस बार कह दिया आपका 0 by 0 पे 0 होना चाहिए. तो आपका सोल्यूशन ऐसा बनेगा ना, x की पावर 3 by 2 c2 x की पावर माइनस 1. तो ये आपका y2 आपके पास हो गया x की पावर 3 by 2 और जो y1 है आपके पास वो x की पावर माइनस 1. ठीक है, चलो बस अब कर दो. फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है, y2 x की पावर 3 by 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू y1. जैसे एक्स स्क्वायर इंटू y1 करेंगे तो x रह जाएगा, और व्हेन यू टेक द लिमिट x अप्रोचेस 0 पॉजिटिव, तो ये कितना हो जाएगा रूट x. इसीलिए आपकी लिमिट x पॉजिटिव लगाई है, रूट x बना है. सो दैट विल बी 0 विच इज अ फाइनाइट एग्जिस्टेंस. यस. सेकेंड, y2 डिवाइडेड बाय x इंटू y1. जैसे x इंटू y1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, एंड व्हेन यू टेक द लिमिट x अप्रोचेस 0 पॉजिटिव, बिकॉज रूट है ना, तो इसकी वैल्यू भी आपकी 0 फाइनाइट आएगी. एग्जिस्टेंस. यस. लुक एट द थर्ड, x इंटू y1. x इंटू y1 इज माई 1 डिवाइडेड बाय y2 x की पावर 3 by 2 एज लिमिट x अप्रोचेस 0 पॉजिटिव. तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. फाइन. और ये भी डज नॉट एग्जिस्ट ही तो कह रहा है आपके लिए. सेकेंड इज एक्स स्क्वायर इंटू y1. एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज x डिवाइडेड बाय, फाइन, तो ये कितना आंसर हो जाएगा 1 बाय रूट x, और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, तो लेकिन ये एग्जिस्टेंस कह रहा है. सो द राइट आंसर इज 1, 2 and 3 आर माई राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन. अगेन यू कैन सी इट्स दिसंबर 2025. अगेन द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. फाइन, तो इसको मैं फिर उसी तरह से सॉल्व करता हूं. r माइनस 1 x के साथ मल्टीप्लाई करिए कोफिशिएंट ऑफ द y प्राइम डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ द, तो कितना हो जाएगा 7, और इसके साथ करेंगे तो ये 9. तो कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 6r प्लस 9 इज इक्वल टू 0. सो r की वैल्यू कितनी आ गई -3. तो आपका सोल्यूशन क्या बन गया बेसिकली c1 प्लस c2 ln ऑफ x की पावर -3. फाइन. अब आप yp लिख लेते हैं. yp क्या आपका बन गया नीचे r प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू x की पावर -3 log ऑफ ex. अब आप देखो पुराना रूल बताऊंगा फिर से. -3 इसका रूट है. कितनी बार आपका रूट है ये -3? 2 बार. फाइन. तो पहले मैं अब आपको, अब इसके साथ ln लिखा हुआ है ना, अगर तो ln नहीं लिखा होता फिर आप इसको 2 बार डेरिवेटिव करके फिल कर देते सीधी वैल्यू. अब आप देखो, अगर तो आपके पास कहीं पे भी x की पावर n और log ऑफ x लिखा हुआ है, where n is the root of the auxiliary equation having multiplicity let's say k. फाइन. जैसे इसका k कितना है, 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो इस केस में आपका k2 हो गया, मल्टीप्लिसिटी 2 होगी. फाइन. तो उस केस में आप इसका yp जो है वो डायरेक्टली लिख सकते हो. एंड हाउ यू कैन डू दैट विल बी x की पावर n log x. फाइन. ये तो आपका yp, इसके लिए लिख रहा हूं ना मैं, yp इंटू log ऑफ x. मल्टीप्लिसिटी कितनी है इसकी, k डिवाइडेड बाय k प्लस 1 फैक्टोरियल. फाइन. तो इसके कोर्सपोंडिंग आपका देखो yp के इतना हो गया. इसके कोर्सपोंडिंग x n की वैल्यू 3 है. फाइन. log ऑफ x, मल्टीप्लिसिटी कितनी है आपकी 2, सो दैट विल बी log ऑफ x 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 फैक्टोरियल, दैट्स 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल इज माई 6. इज इट ओके? तो अब आप देखो ये कितना हो गया, क्यूब हो गया आपके पास. सो फाइनल सोल्यूशन आपके पास क्या बन गया, प्लस x की पावर -3 log ऑफ x क्यूब डिवाइडेड बाय 6. अब पूछा क्या, y1 0 पूछा आपसे. y1 0 करोगे तो ln1 0 तो c1 आपका 0 आ गया. फाइन. y प्राइम इज ऑल्सो 0, तो c1 तो 0 हो गया.
y प्राइम के साथ c2 भी आएगा, तो यू कैन क्लियरली से y2 प्राइम इज ऑल्सो माई 0। आप करना चाहो मैं कर देता हूं आपके लिए, बट आप क्विकली से एनालाइज भी कर सकते हो, क्योंकि ये चीज तो हमेशा ही आपके पास 0 जाएगी ना, ln की पावर क्यूब है, डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, तब भी तो ln 1 0 चला जाएगा ना, ये टर्म 0 हो गई, इसके साथ फिर c1 रह गया और साथ में दिस वन, तो c2 विल बी 0, तो c2 भी 0 होगा, तो यही रह गया आपके पास सोल्यूशन। फाइन, अब आपको किस पॉइंट पे पूछा, आपसे y ऑफ e पूछा, तो फिल कर दो, e की पावर -3, ये टू द बेस e है ना आपका, तो ये भी टू द बेस e होगा, log टू द बेस e इज माई 1 डिवाइडेड बाय 6 इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन, phi इज द सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, देन, तो मैं फिर से वही अप्रोच लगा दूं, यही वाली, देखो यही है ना, एक सॉल्यूशन दे रखा है आपको, फाइन, और दूसरा सॉल्यूशन आपको निकालना है, तो कितना आ जाएगा सॉल्यूशन, देखो मैं यहां पे फिल कर रहा हूं, y1 फर्स्ट सॉल्यूशन आपके पास क्या है, x 1/x² e की पावर माइनस कोफिशिएंट ऑफ दी y प्राइम, तो मैं माइनस माइनस प्लस x के साथ मल्टीप्लाई 2/x² प्लस 1/x डिवाइडेड बाय a0 कोफिशिएंट ऑफ दी y डबल प्राइम, दैट्स 1, तो कितनी होगी इसकी इंटीग्रेशन, इस 2/x प्लस 1, तो ये हो गया आपके पास 2 log x प्लस 1x, ये तो आएगा, तो ये इसकी इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, दैट विल बी x², तो ये x² से ये x² कट जाएगा, तो एक बच जाएगा e की पावर x, तो e की पावर x की इंटीग्रेशन कितनी हो गई आपकी, x इंटू e की पावर x, तो आपका एक सोल्यूशन हो गया x, सेकेंड हो गया आपका x e की पावर x, तो द जर्नल सोल्यूशन विल बी c1 फर्स्ट सोल्यूशन, c2 सेकेंड सोल्यूशन, देखो कितना आंसर हो गया ये, कौन सा आंसर है, यहाँ पे तो 1, इसमें तो x ही नहीं है ना, इसमें भी नहीं है, इसमें x है लेकिन e की पावर है, आपको चाहिए x इंटू e की पावर x, सो दैट्स द राइट आंसर इज फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। फाइन, मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, मैंने कुछ ही क्वेश्चन लास्ट मिनट रिवीजन में हर टाइप का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा है, फॉर मोर डिटेल्स फाइन यू कैन वॉच अबाउट माई प्रीवियस लेक्चर्स सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, आप इस वीडियो में 50+ क्वेश्चन इजिली देख सकते हो आप, और ये लेक्चर आपको मिलेगा कहां, एज आई टेल यू लास्ट मिनट रिवीजन लेक्चर में, यू कैन सी दैट स्टडी स्टेट सोल्यूशन के बाद पढ़ा हुआ है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइन, क्योंकि मैं लिमिटेड टाइम पीरियड है, इसलिए मैं कुछ ही क्वेश्चन हर टाइप का सॉल्व करवा सकता हूं, फॉर मोर प्रैक्टिस यू मस्ट वॉच इट। चलिए एक और देखते हैं, फेब 2025 का है, सपोज द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन विच इज ट्रांसफॉर्म इनटू द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट्स एंड बाय द चेंजेस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। फाइन, तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है जिसका डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0 पे 1 हो जाए, तो पहली बात पॉलिनोमियल तो कभी नहीं होगा, फाइन, क्योंकि हर पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव 0 पे 1 नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है, या तो a की पावर x होगी या e की पावर x होगी, बट यू कैन सी फंक्शन में एक्सपोनेंशियल है ना, तो आपके पास जो सोल्यूशन होगा s का वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ही होगा, क्लियर। अब वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का क्या लेना है आपको, जहां पे भी अगर यहां पे e की पावर ax गिवन में है, तो आपको जो सब्स्टिट्यूशन करनी है वो e की पावर ax डिवाइडेड बाय 2 में लेना, हमेशा हाफ ऑफ द एंगल, तो आपने ये ले लिया। फाइन, अब चेक करते हैं क्या इस ट्रांसफॉर्मेशन से क्या ये कांस्टेंट कोफिशिएंट बनेगा, और 100% बनेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म आपकी प्रेजेंट है, तो आपको क्या करना है, dy over dx निकालना है, तो बाय यूजिंग द चेंज ऑफ द वेरिएबल्स आई कैन राइट एज ए dy over ds into ds over dx। फाइन, नाउ आई कैन फाइंड द सेकेंड, विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, तो फर्स्ट रूल तो ऐसे रह गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म के लिए e की पावर x, तो यहां पे फिर से मैं s के साथ कर देता हूं, और एक ds इंटू डी एक्स ये कर दिया। फाइन, ये सारी वैल्यू मैं इस इक्वेशन में फिल कर देता हूं, सो दैट विल बी e रेज टू पावर 2x y डबल प्राइम, अब y जो डबल प्राइम है वो विद रिस्पेक्ट टू x हो गया, प्लस e की पावर x y प्राइम, यहां पे dy ओवर dx की वैल्यू, फाइन, सो p e की पावर x इंटू y प्राइम प्लस e की पावर 2x ऑफ y इज इक्वल टू 0। आई कैन डिवाइडेड e की पावर x ऑन द बोथ साइड,
प्लस ई की पावर माइनस एक्स 1 प्लस पी वाई प्राइम। नाउ अब ये जो चीज है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट कब बनेगी? when it will be the constant coefficient only when e raised to power minus x 1 plus p is my constant। फाइन, तो देखिए पहला ऑप्शन सही हो गया आपका। फाइन, सेकंड ऑप्शन e की पावर माइनस 2x px इज ए कांस्टेंट। अगर यहां से p की वैल्यू यहां पे फिल करोगे दैट इज नॉट ट्रू। क्या s आपका e की पावर 2x/2 है? नो। फाइन, px approaches 1 as x approaches infinity, तो यहां से p की वैल्यू कितनी आ गई? p will be c e की पावर x minus 1, so clearly say that will goes to the infinity as x approaches infinity। पर यहां पे क्या कह रहा है? x approaches infinity पे 1 पे जाएगा, that is wrong statement। फाइन, so right answer is a is the correct answer। मैं फिर कह रहा हूं, फॉर मोर डिटेल यू कैन वॉच अबाउट माई दिस मस्ट लेक्चर। चलिए थर्ड कैटेगरी डिफाइन करते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पे। वेनेवर, जब कभी भी आपको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे और उसका y प्राइम का कोफिशिएंट 0 हो। फाइन, अभी तक जितने भी हमने ये सॉल्यूशंस निकाले हैं, आपने एक चीज ध्यान रखी हो, ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है व्हेन कोफिशिएंट ऑफ द y प्राइम, y और y इसके साथ जो भी कोफिशिएंट्स हैं they are not my constants। you can see ये सब के सब आपके साथ x के साथ मल्टीप्लाई है, साइन x है, ओके, x प्लस एक्स स्क्वायर है, डेरिवेटिव में फॉर्म है ln x है, कुछ भी है, तब आपने ये ऑक्सिलरी मेथड्स अप्लाई करना है। लेकिन अगर कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है और कोफिशिएंट ऑफ द y प्राइम इज माई 0, तो वो हमेशा और हमेशा ही बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से सॉल्व करना है। फाइन, और सॉल्व भी क्या करना है, आपको सीधा का सीधा सोल्यूशन लगा देना है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ अंडर रूट लैम्डा एक्स। लैम्डा आपका कितना है? जैसे अगर मैंने कहा y डबल प्राइम प्लस 9y इज इक्वल टू 0, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x। फाइन, प्रोवाइडेड सम कंडीशंस। अब कंडीशन आपके चार तरह की है। पहली कंडीशन, जो भी आपको इंटरवल दे रखा है, अगर उन दोनों इंटरवल्स के एंड पॉइंट्स की वैल्यू 0 है, लैम्डा इज ऑलवेज n पाई ओवर l होल स्क्वायर। अगर इसका एंड पॉइंट सेम है और डेरिवेटिव वैल्यू भी सेम है, देन इट इज अ 2n पाई ओवर l वेयर l इज द लेंथ ऑफ द इंटरवल। थर्ड एंड फोर्थ केस, अगर डेरिवेटिव एंड द फंक्शन वैल्यू दोनों सेम है, y ऑफ a सेम एज y प्राइम, y ऑफ b सेम एज y प्राइम, तब आपका आंसर सेम रहेगा n पाई ओवर l। बट अगर y ऑफ a एंड y प्राइम इज 0 है, देन इट्स अ ओड मल्टीपल्स 2n प्लस 1 ओवर 2। इस सिंपल शॉर्टकट ट्रिक से आप अपना आंसर चुटकियों में निकाल सकते हो। यू कैन सी, पहली बात ये देखो, क्या यहां पे आप इंडिशियल इक्वेशन लगा सकते हो? नो, बिकॉज कोफिशिएंट आपके वेरिएबल नहीं है। तो पहले मैं इसको थोड़ा सही करके लिख लेता हूं। y डबल प्राइम का कोफिशिएंट 1 बनाना, तो सबको मैं राइट साइड पे ले जा रहा हूं, लैम्डा माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब आप देखो कोफिशिएंट ऑफ दी y प्राइम कितना है? 0 है ना, तो इसका मतलब ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से सॉल्व होगा। आपसे क्या पूछा है? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तभी होगा whenever coefficient of the y must be greater than 0। that is a condition for the non trivial solution। फाइन, अब आप चेक करो कंडीशन क्या दे रखी है आपको, y ऑफ 0, y ऑफ पाई इज 0, तो इसका मतलब इसकी लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? n पाई ओवर l। l कितना है? दोनों का डिफरेंस, पाई माइनस 0 इज पाई, तो ये कितना हो गया? लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू n स्क्वायर, where n is my positive integer। फाइन, नाउ अब क्या होगा? 3 कभी हो सकती है ये वैल्यू? नहीं हो सकती। 2 नो, बिकॉज लैम्डा विल बी माई 3 प्लस n स्क्वायर। फाइन, 3 आपको सर हो सकती है बिकॉज n पॉजिटिव, तो n 0 ले लूं, बट लैम्डा फॉर द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन 3, सो द राइट आंसर इज ओनली फोर्थ इज द राइट आंसर। अगर यहां पे सिंपल सॉल्यूशन लिखा होता तो आपका फर्स्ट एंड द फोर्थ बोथ करेक्ट ऑप्शंस। अगर यहां पे सिंपल और सिंपल ट्रिवियल सॉल्यूशन लिखा होता, देन ओनली लैम्डा इज इक्वल टू 3 इज द राइट आंसर। चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन। नाउ यू कैन सी जुलाई 2025, अगेन यू कैन सी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। फाइन, इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। सही, x
वाई डबल प्राइम प्लस वाई प्राइम। देखो अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई। फाइन, तो इसका मतलब इंडिशियल इक्वेशन लगानी पड़ेगी। फाइन, क्योंकि आपका कोफिशिएंट एक्स में है तो लगाओ फिर से, आर इंटू आर माइनस वन, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे दैट्स अ वन, और इसको करोगे दैट विल बी लैम्डा। फाइन, तो ये कितना बन गया, आर स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। फाइन, तो दैट मीन्स अगर मैं इसको डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं, सो कैपिटल डी स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू वाई इज इक्वल टू 0। फाइन, और डी स्क्वायर, क्योंकि यहां पे सब्स्टिट्यूशन होती है ना आपके पास, ये एक्स इज ई रेस्ट टू पावर जेड, तो ये जेड की फॉर्म में बन गया आपके पास। फाइन, तो आप देखो अब कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गए और वाई प्राइम का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1। तो आपके पास इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, एन पाई ओवर एल होल स्क्वायर, प्रोवाइडेड ये सॉल्यूशन कब बनेगा, जब उसके दोनों एंड पॉइंट पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। लेकिन यहां पे 1, लेकिन ई की पावर जेड में फिल करो तो आंसर कितना बन गया, ई की पावर, ये एक्स की वैल्यू है तो एक्स इज इक्वल टू ई की पावर, तो जेड कितना आएगा, फाइन, तो कितना आएगा 0। फाइन, और 2 की पावर ई की पावर 2y, सो दैट्स 2 पाई इज माई 0। तो कितना हो गया आपका एल, एल विल बी 2 पाई, तो फिल करोगे कितना हो जाएगा, n ओवर 2 होल स्क्वायर। फाइन, अब आपसे पूछ लो क्या क्या पूछ रहे आपसे, अब आपसे क्या पूछा इन्होंने, समेशन ऑफ 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर दैट्स 4 ओवर n स्क्वायर, 4 इज माई आउटसाइड, तो ये क्या हो गया, फोरियर सीरीज से आप किसका सॉल्यूशन, वी ऑल नोस दैट्स अ पाई स्क्वायर ओवर 6 इज द राइट आंसर। सो 2 पाई स्क्वायर ओवर 3 इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम, बिकॉज वी ऑल नोस 1 plus 1 2 square plus 1 over 3 square up to so on, that will be give to pi square by 6. So the right answer is B is the correct answer. चलिए look at that, the following 2-point boundary again y double prime plus lambda y, कोफिशिएंट ऑफ दी y नहीं है और कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं और एंड पॉइंट्स पे दोनों वैल्यू 0 है। फाइन, तो इसका लैम्डा कितना हो जाएगा आपका, n पाई ओवर l। फाइन, तो ये कितना हो गया, n स्क्वायर, हैज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्लियर, सो नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, दैट्स रॉन्ग, लैम्डा इज इक्वल टू 1 satisfied, lambda is greater than equal to 0, that's wrong because lambda must be greater than 0। ट्रिवियल सॉल्यूशन तो है, आपको नॉन ट्रिवियल पूछा ना, तो नॉन ट्रिवियल कब होगा, whenever coefficient of the y is strictly greater than 0। फाइन, तो यहां पे इक्वालिटी आ गई, तो दैट्स नॉट ट्रू, यस इट्स n इज माई पॉजिटिव इंटीजर, तो 1 2 3 सभी के लिए पॉजिटिव है, सो B एंड C आर माई राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। चलिए और बता रहा हूं कुछ और शॉर्टकट ट्रिक्स, अगर आपके पास y डबल प्राइम प्लस अगेन द कोफिशिएंट ऑफ y प्राइम 0 हो, फाइन, बट कोफिशिएंट ऑफ द y इंस्टेड ऑफ द लैम्डा इज अ फंक्शन ऑफ द x, और x भी ऐसा कि वो पॉजिटिव हो और उसकी लिमिट ग्रेटर देन 1 हो, देन वी ऑलवेज गेट ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ऑलवेज। और y एंड y प्राइम के इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, इंटरवल को दिमाग में रखना आपका, फाइन, इंटरवल आपका क्या है 0 से इंफिनिटी, और y एंड y प्राइम्स आर नॉन मोनोटोनिक्स और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसके उल्टा अगर आपके पास Q पॉजिटिव है लेकिन लिमिट्स के बारे में कोई बात नहीं हो रही और सिंपल Q आपका कंटिन्यूस है, तो यहां पे आपको एटमोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ द जीरोस मिलेंगे। यहां पे कितने जीरोस है, इनफाइनाइटली मेनी जीरोस। अगर आपको फाइनाइट नंबर ऑफ जीरो चाहिए तो आपका इंटरवल फाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस के लिए आपका इंटरवल इंफिनिटी तक जा रहा है, लेकिन एटमोस्ट फाइनाइट के लिए आपको इंटरवल फाइनाइट चाहिए। और अगर Q लेस देन 0 है तो y प्राइम एटमोस्ट 1 0 आपको मिलेगा y प्राइम के अंदर। क्लियर, जैसे लुक एट दैट, अब आप सबसे पहले इस पे मैं इंडिशियल इक्वेशन नहीं लगा सकता बिकॉज इसमें पेयर नहीं है ना आपका, कुछ ऐसा होना चाहिए ना, एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम एंड सो ऑन। तो पहले मैं इसको सही करके लिखता हूं। अगेन यू कैन सी कोफिशिएंट ऑफ द वाई प्राइम इज 0। फाइन, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो दैट इज माई क्यू एक्स।
clearly say the qx is my positive. Also इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी? as x approaches infinity that will be my 4 which is my greater than 1. और आप ऑप्शंस में देखो, आपसे सोल्यूशन नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा है? इन्फाइनेटली मैनी जीरोस, एटलीस्ट जीरोस, इन्फाइनेटली मैनी जीरोस. तो इसका मतलब आपको इंडिशियल इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है. फाइन. अगर तो सोल्यूशन पूछा जाता फिर आप लगाते हम पे. तो क्या था सोल्यूशन? मैं दोबारा रिकॉल कर रहा हूं. इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन तब मिलेगा जब आपका इंटरवल इंफिनिटी तक है. फाइनाइट नंबर ऑफ दिस जीरोस तब मिलेंगे आपके पास जब आपका इंटरवल फाइनाइट है. फाइन. अब आप देखो, यहां पे फाइनाइट है इंटरवल, लेकिन इन्फाइनेटली कह रहा है. दैट्स अ रॉन्ग आंसर. पहले गलत कर दो सीधे. क्लियर. अब इन्फाइनेटली मैनी जीरोस सेमी ओपन है. फाइन. तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी ना आपकी. तो इसका मतलब यस इट हैज इन्फाइनेटली. तो चाहे वो जीरो से इंफिनिटी हो, चाहे वो ए से इंफिनिटी हो, दैट्स द सेम मीनिंग. सो द एक आंसर तो आपका बी करेक्ट हो गया. अब बात बचती है फाइनाइट के केस में. फाइनाइट के केस में ये दोनों फाइनाइट है ना. फाइनाइट के केस में क्या करना आपको? क्यू कंटिन्यूस प्रूफ करना पहले. तो क्या ये क्यू कंटिन्यूस है? यस इट्स अ कंटिन्यूस फंक्शन बिकॉज 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो डिनोमिनेटर है इट कैन नेवर बी जीरो. फाइन. अब चेक करना है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव. नाउ क्यू ऑफ एक्स इज ऑलवेज माई पॉजिटिव. फाइन. तो अगर क्यू कंटिन्यूस है, क्यू पॉजिटिव है, तो वाई एक्स के एटमोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ द जीरोस मिलेंगे. तो एटमोस्ट फाइनाइट तो मिल जाएंगे. अब यहां पे कितने हैं? इस केस में मैं एन की वैल्यू 1 ले लेता हूं. फाइन. अगर एन की वैल्यू 1 है तो आपका इंटरवल क्या बन गया? 0 से पाई. फाइन. अब इस इंटरवल के अंदर आप कोई भी एक पॉइंट ले लो. मैं 0 ले लेता हूं. फाइन. इस 0 पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई आपकी? y डबल प्राइम प्लस y इज इक्वल टू 0. तो आपका सोल्यूशन क्या हो गया इसका भी? साइन ऑफ x. अभी तो बताई मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स. फाइन. तो आपका सोल्यूशन क्या होता है? साइन ऑफ रूट लैम्डा एक्स. ठीक है. अगर आपको नहीं समझ में आई चीज तो आप ये ले लेना y1 ऐसे तो लिखोगे आप. फाइन. तो ये कंडीशन अप्लाई कर दो, c1 आपको 0 मिल जाएगा इससे भी. क्लियर. अब जैसे ही साइन एक्स हुआ, 0 से पाई के अंदर इसके कितने जीरोस आएंगे? हाउ मेनी जीरोस लाइज इन द क्लोज्ड इंटरवल 0, पाई. एक 0 पे आएगा और एक पाई पे आएगा. तो ये क्या कह रहा है? एटमोस्ट 3 जीरोस. यस 2 जीरो मिले. और यहां पे भी एटलीस्ट 1 जीरो. यस आपको 2 मिले ना, कम से कम एक तो मिलेगा ही. यस. सो आंसर इज बी, सी एंड डी आर माई राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन. y1 is a non-trivial real solution of y double prime plus x y is equal to 0. आप देखो q आपका क्या है? x है which is greater than 0 और लिमिट आपके पास क्या है इस q की? इंफिनिटी which is greater than 1. तो इसका मतलब अगर इसके इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन होंगे तो डोमेन आपकी इंफिनिटी तक जाएगी, और अगर ये फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस होंगे तो इसकी डोमेन आपकी क्लोज फाइनाइट इंटरवल्स होगा. अब आपकी डोमेन क्या है? डोमेन इज माई. तो इसका मतलब फाइनाइट तो कभी नहीं मिलेगा आपको भी. तो y1 जो आपके पास है दैट विल ऑलवेज गिव यू द इनफाइनाइटली नंबर ऑफ द जीरोस. तो इनफाइनाइटली नंबर ऑफ जीरोस, ए इज द करेक्ट, सी इज द रॉन्ग आंसर बिकॉज आपकी डोमेन जो है वो 0 से इंफिनिटी है. क्लियर. नाउ लुक एट द सेकेंड वन. अब सेकेंड में ये ट्रिक एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज राइट हैंड साइड इज अ नॉन जीरो. फाइन. अच्छा इसका ओके एक सेकेंड मेथड यू कैन चूज एनी एक्स बिटवीन द 0 टू इंफिनिटी. लेट्स से 1. तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई? डिफरेंशियल y डबल प्राइम प्लस y इज इक्वल टू 0. फाइन. तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? साइन ऑफ x. तो हाउ मेनी जीरोस इन द 0 टू इंफिनिटी? इट हैज इनफाइनाइटली मैनी जीरोस. फाइन. तो अगेन यू कैन सी द a इज द करेक्ट, c इज द रॉन्ग आंसर. चलिए सेकेंड ऑप्शन. सेकेंड y डबल प्राइम प्लस y विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड y ऑफ 0 एंड y प्राइम 0 दे रखा है आपको. इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के सोल्यूशन निकाल लो. c1 cos x प्लस c2 sin x और पर्टिकुलर इंटीग्रल करके निकाल लो 1/1 प्लस डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2. तो ऊपर जाके बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दो
1 माइनस डी स्क्र प्लस d4 अप टू एक्स स्क्र प्लस 2। तो करो इसका डेरिवेटिव, तो दैट इज एक्स स्क्र प्लस 2, डी स्क्र 2 बार डेरिवेटिव करोगे 2, बाकी सब आपका 0। सो दैट विल बी वाई पी इज माई एक्स स्क्र। ठीक है जी, यही आएगा ना? नहीं समझ लगा? अरे यार, इसको क्या करोगे आप, 1 प्लस डी स्क्र को -1 लिखोगे, इस पे एक्सपेंशन लगाओगे, प्लस डी स्क्र ऑफ स्क्र एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो अब आपका वाई पी आ गया, पूरा सोल्यूशन आ गया। y1 y ऑफ 0 इज 0, ये तो 0 ही है, इसका मतलब आपका c1 0 आ जाएगा। डेरिवेटिव करके करोगे तो c2 आपका 0 आ जाएगा। तो फाइनल सोल्यूशन आपका क्या मिला, दैट इज माई एक्स स्क्र। तो कितने जीरोस हैं, इससे क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक जीरोस हैं, तो आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ दी जीरोस मिलेंगे। y2 इज करेक्ट, infinitely 0 is wrong, a and d are the right answers. चलिए look at that. Next one is the December 2025. y prime plus r of y is equal to 0. सबसे पहले फिर से उसी पहले वही अप्रोच लगा देते हैं, चेक करते हैं क्या आपका r पॉजिटिव होगा। फाइन, देखिए x क्यूब एंड साइन 1 ओवर एक्स, वेन एवर एक्स इज माई नॉन जीरो, तो x आपका लेस देन 0 भी हो सकता है और x आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। वेन एवर एक्स इज माई पॉजिटिव दैट इंप्लाइज r इज माई पॉजिटिव। फाइन, और जैसे ही आपका x नेगेटिव होगा, x क्यूब इज माई नेगेटिव, साइन ऑफ 1 बाई एक्स इज ऑल्सो नेगेटिव, दैट मीन्स नेगेटिव एंड नेगेटिव इज पॉजिटिव, सो r इज माई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, इक्वालिटी पे तो 0 आ जाएगा। और whenever you can find the limit, find infinity fill करोगे तो that will be my goes to the infinity which is greater than 1। तो जैसे infinity both the conditions satisfied, therefore it has infinitely many zeros on the interval 0, infinity। पर लेकिन यहां तो infinitely many zeros क्लोज इंटरवल में कह रहा है आपके पास, that's a wrong statement। फाइन, समझ गए? चलिए, अच्छा इसको फिर से उस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये वाला कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो कोई भी अल्फा बीटा ले लो, अल्फा लेस देन बीटा, तो साइन है तो अल्फा की वैल्यू को मैं -पाई ले रहा हूं और बीटा की वैल्यू को पाई ले रहा हूं। फाइन, तो कोई भी तो इंटरवल क्या बन गया आपका, -पाई से पाई। फाइन, तो एक एक्स में इसके बीच में से ले रहा हूं, कोई भी 0, तो 0 पे r की वैल्यू कितनी है, 0, तो सोल्यूशन क्या बन गया आपके पास, y डबल प्राइम इज 0, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, c1 विच इज माई, कितने लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन कितने आएंगे और जीरोस कितने आएंगे, दैट इज फाइनाइट, बट ही सेड इनफाइनाइटली मैनी जीरोस। फाइन, लुक एट दैट, यहां आपका इंटरवल क्या है, तो यहां पे आपको कितने जीरोस मिलने चाहिए, इनफाइनाइटली मैनी जीरोस, पर यहां पे क्या कह रहा है, एट मोस्ट, दैट्स रॉन्ग। एटमोस्ट कब मिलता है आपको, जब आपका ये इंटरवल होता, ये उल्टा लिख दिया इन्होंने, ठीक है, दैट्स व्हाई द ऑप्शंस आर कैंसल आउट। चलिए लुक एट द थर्ड ऑप्शन, phi1 and phi2 are the linearly independent solutions, phi1 and phi2 are my li, तो अगर ये li है तो रोन्सकिन कितना होगा आपका, नॉन जीरो, इज अ कांस्टेंट। अब कांस्टेंट होगा कि नहीं वो भी देख लेते हैं। अब नॉन जीरो तो आपको पता है, तो एबल्स फॉर्मूला लगा दें। फाइन, रोन्सकिन एट द पॉइंट एक्स नोट, ई की पावर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ द वाई प्राइम इज 0, फाइन ई की पावर 0 इज 1, रोन्सकिन एट द पॉइंट 0। अब रोन्सकिन एट द पॉइंट 0 आपको गिवन नहीं है तो नो इश्यू, आई कैन अगेन अप्लाई द रोन्सकिन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ द डेरिवेटिव। फाइन, dw by dt is e raised to power coefficient of the y prime, so again you can say the 0, e raised to power 0 is my 1. Fine, so derivative is my constant, dw by dt is my 1. What does it means? No, that's not a, oh sorry, ये तो मैंने रोन्सकी वाला लिख दिया ना, सॉरी। तो डेरिवेटिव वाले में क्या रूल होता है, dw by dt प्लस कोएफिशिएंट ऑफ दी, अच्छा यहां लिख दे रहा हूं मैं आपको, अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ए नोट वाई डबल प्राइम प्लस पी वाई प्राइम प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको डिफरेंशियल इक्वेशन
रॉन्स्कियन में बनानी हो तो dw/dt प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू 0 वेयर p इज द कोफिशिएंट ऑफ दी वाई प्राइम। तो अब आप इसमें देखो p आपका कितना है 0, दैट इंप्लाइज dw/dt प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो किसी का डेरिवेटिव अगर 0 है दैट मीन्स रॉन्स्कियन इज माई कॉन्स्टेंट। तो यस, द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये पहले मैं ई की वो तो मैं एबल्स फॉर्मूला लिख रहा था। फाइन, चलिए लुक एट दैट। बच्चों मैं बार बार कह रहा हूं आप दिस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, आपका एग्जाम इजीली क्लियर हो जाएगा। नाउ लुक एट द ऑप्शन सेकंड। क्या कह रहा है आपके पास ये, देयर एग्जिस्ट अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल इन्फाइनेटली मैनी जीरोस। तो इन्फाइनेटली मैनी जीरोस के लिए आपके पास क्या है, जीरो से इन्फिनिटी में इसके कितने सोल्यूशन हमने डिफाइन कर दिए हैं। इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन तो हमने प्रूव कर दिया ना, बिकॉज ये आर आपका ग्रेटर देन भी है और लिमिट इसकी ग्रेटर देन 1 भी आ रही है। अब ये चेक करना है क्या ये इसका इंटरवल क्या है, एक्स एन अप्रोचेस इंफिनिटी 5। इसका क्या मतलब है, किसी भी इक्वेशन को हम 0 लिख दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स एन इज माई रूट ऑफ द 5। और 5 आपके पास क्या है, 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने जीरोस हैं, इट हैज इन्फिनिटली मैनी जीरोस ऑन द इंटरवल 0, इंफिनिटी। और आप देखो जैसे एक्स एन आपका इंफिनिटी पे लेकर जाओगे आप, यू हैव इन्फिनिटली मैनी जीरोस। फाइन, सो द राइट आंसर इज, कौन कौन से राइट हो गए आपके, सेकंड एंड थर्ड आर माई राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। अच्छा एक और तरह से भी कर सकते हो, आप लिमिट वाला कंसेप्ट भी लगा सकते हो। जैसे मैंने बताया था एक्स अप्रोचेस इंफिनिटी, 1/x विल गोस टू दी 0। तो जैसे ये 0 को जाए आपका, तो साइन ऑफ 1/x को क्या लिख सकता हूं मैं, आई कैन रिटेन एज ए 1/x। तो जैसे 1/x लिखा तो आपका rx बेसिकली क्या बन गया, एक्स क्यूब इंटू 1/x इज एक्स क्यूब, बिकॉज x अप्रोचेस इंफिनिटी यहां लाइक करेगा ना। तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई, y डबल प्राइम एक्स स्क्वायर ऑफ y इज इक्वल टू 0। फाइन, और क्या शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने आपको पहले बता रखी है, व्हेनेवर y डबल प्राइम प्लस एक्स की पावर k of y is equal to 0, then you always have the oscillating solution whenever k is my greater than equal to 1. फाइन, तो इसका अगर ऑसिलेटिंग सोल्यूशन है दैट मीन्स साइन एन को साइन में होगा, तो इसके कितने इन्फिनिटली नंबर ऑफ दी जीरो सी तो होते हैं, साइन एन को साइन के कितने जीरोस होते हैं, इन्फिनिटली मैनी जीरोस। तो चॉइस आपकी है, चाहे तो आप इन्फिनिटी वाला कंसेप्ट लगा दो, अदरवाइज जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको, आर अप्रोचेस आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और लिमिट आपकी मोर देन 1। चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन, फाई एंड साई आर द टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। तो इसका मतलब इस दोनों के बीच का रॉन्स्कियन आपके पास नॉन जीरो है। अच्छा इसमें फिर से देखो आप, वाई प्राइम का कोफिशिएंट नहीं है ना आपके पास, फाइन, इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो आर आपका क्या हो गया, 2 माइनस, नो आर नहीं, क्यू से लिख रहे हैं ना, आर तो पिछले क्वेश्चन में था, तो ये हमेशा ही आपका पॉजिटिव होगा। फाइन, ये कंटिन्यूस भी होगा। फाइन, और इसकी लिमिट जो है वो इससे ग्रेटर देन 1। क्लियर, नहीं लिमिट के बारे में नहीं कुछ कह सकते ना आप, लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी पे कोस एक्स की लिमिट तो डिफाइन ही नहीं होगी। तो यहां पे सिर्फ क्यू इज माई कंटिन्यूस, क्यू इज माई पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसके फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस एंड वो हो सकते हैं, तो दे हैव अ फाइनाइट जीरोस इन द इंटरवल, जो भी आपका इंटरवल, और इंटरवल इन्होंने दे रखा है आपको अल्फा बीटा। फाइन, तो इसका मतलब वहां पे इन्फिनिट की वाली बात नहीं करेंगे। चलिए चलो क्या कह रहा है, अल्फा एंड बीटा द टू रियल नंबर्स, यहां पे कोई अल्फा, यहां पे कोई वैल्यू आपके पास, ये वैल्यू 0 है, और इसके बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं उसके बीच में फाई एक्स इज अ नॉन जीरो। इसका मतलब इसका ग्राफ क्या हो सकता है, यहां पे अगर आपका वैल्यू 0 है, कुछ भी आपका कंटिन्यूस ग्राफ है ऐसा होगा कुछ भी, फाइन, लेकिन यहां पे आना उसको वापिस पड़ेगा ही पड़ेगा, ऐसा ही तो होगा ना, तभी तो ये दोनों जीरोस हैं। फाइन, तो क्या बोल रहा है, डेरिवेटिव, तो लगा दो रूल, अगर आप यहां से इसका डेरिवेटिव बनाओ, ये आपका क्या है इधर से इंक्रीजिंग, तो आपका फाई डैश, फाई इज द सोल्यूशन, ये क्या हो गया पॉजिटिव। यहां आपका कन्वर्जिस नीचे को जा रहा है ग्राफ, तो यहां से आपका फाई डैश क्या होगा
लेस देन जीरो, तो इसका मतलब फाई डैश एट द अल्फा इज अ पॉजिटिव, फाई डैश एट द बीटा इज माई लेस देन जीरो। तो जब दोनों के प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, वो लेस देन जीरो, लेकिन ये कह रहा है आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, सो पी इज माई फॉल्स स्टेटमेंट। फाइन। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर हो सकता है कि अल्फा वाली चीज नीचे को जाए, फाइन, तो क्या दिक्कत है, नो इश्यू। हमारा टारगेट था, ऑप्शन से डिस्कार्ड कर दिया हमने। अगर आप सोच रहे हो कि सर इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो, अगर ऐसा भी हो सकता है, नो इश्यू। तो यहां पे क्या हो जाएगा, फाई डैश ऑफ एल्फा इज लेस देन जीरो, बिकॉज यहां पे डिक्रीजिंग है ग्राफ और यहां से इंक्रीज हो रहा है ऊपर, सो फाई डैश ऑफ बीटा इज माई पॉजिटिव, अगेन यू कैन सी द प्रोडक्ट इज माई लेस देन जीरो। तो आपका पी ऑप्शन आपका फॉल्स हो गया। तो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन तो आपके कट गए। और सेकंड में क्या कह रहा है, सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा है आपसे, इसे नॉन जीरो और नॉट। तो क्या आपके पास इसे स्टम्प प्रॉब्लम, फाइन, तो आई कैन यूज द स्टम्प सेपरेशन थ्योरम। तो क्या कहती है आपके पास, अगर आपके पास दो सॉल्यूशन है y1 एंड y2, किसी भी एक सॉल्यूशन के टू कंसेक्टिव जीरोस हों, टू कंसेक्टिव जीरोस हैं, फाइन, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन x, फाइन, जिससे इसकी वैल्यू जो आपके पास है वो जीरो हो जाएगी। फाइन। अब आप देखो y1 मतलब फाइव के दो कंसेक्टिव जीरोस है ना, कंसेक्टिव क्यों, क्योंकि इसके बाकियों में तो कोई भी जीरोस नहीं है ना आपका, सो दैट मीन्स फाइव ऑफ एल्फा एंड बीटा आर माई जीरोस। तो अगर ये इसके कंसेक्टिव जीरोस हैं तो दूसरे में कम से कम एक आपको एक्स ऐसा मिलेगा जिसकी वजह से ये जीरो हो जाएगा। तो जैसे ये जीरो होगा तो इसका प्रोडक्ट आपके पास जीरो ही होगा, बट ही सेड नॉन जीरो, सो बोथ आर माई फॉल्स स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। क्लियर। सो फॉर मोर डिटेल्स, बिकॉज मैं फिर कह रहा हूं मैंने आपको कुछ 7-8 क्वेश्चन करवाए हैं हर टाइप के, अगर आप 30+ क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो यू कैन वॉच अबाउट माई दिस लेक्चर स्टर्म लेवल प्रॉब्लम, अगेन आपको सिंपल प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। नाउ द लास्ट कैटेगरी इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टम ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सिस्टम इज whenever we are talking about dx over dt is a of x। मैं आपको पहले शॉर्टकट ट्रिक्स बता देता हूं। वी ऑलवेज फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, फाइन, और उसके बेस पे हम सॉल्यूशन निकालेंगे। बट मेक श्योर जो आपका ये a है दैट इज मस्ट बी द कोएफिशिएंट ऑफ दैट्स अ कांस्टेंट मैट्रिक्स, कांस्टेंट मैट्रिक्स होनी चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या कह रहा है। अच्छा, सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज माई ट्रू। सभी में आप देखो टी अप्रोचेस इंफिनिटी, टी अप्रोचेस इन बाउंडेड में भी तो इंफिनिटी चलता है, तो इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, स्टडी स्टेट सोल्यूशन, फाइन। तो स्टडी स्टेट सोल्यूशन के लिए मैंने आपको क्या अप्रोच बताई थी, यू कैन वॉच, मैंने पार्ट ए में भी कहा था आपको बच्चों कि स्टडी स्टेट सोल्यूशन का लेक्चर मस्त देखिए, जरूर जरूर देखिए, 70% क्वेश्चन आपके स्टडी स्टेट लेक्चर से सॉल्व हो जाते हैं। तो यहां पे देखो इंफिनिटी है ना, तो मैं स्टडी स्टेट कंसेप्ट लगा रहा हूं, तो स्टडी स्टेट जैसी कंसेप्ट लगाया मैंने, तो dx बाई डी टी इज जीरो, तो इसकी आइगन वैल्यूज निकाल दो, क्या होगी, लैम्डा स्क्वायर 7 10 माइनस 4 6, तो आइगन वैल्यूज क्या आ गई आपकी 1 एंड 6। तो आपका सोल्यूशन क्या हो गया, x विल बी c1 e की पावर t प्लस c2 e की पावर 6t, फाइन। अब आप देखो ऑप्शन क्या कह रहा है, फाई इज अ बाउंडेड फंक्शन, दैट्स रॉन्ग, बिकॉज ये वैल्यू आपके क्या जा रही है इंफिनिटी पे, व्हेन यू टेक t एट टेंड्स टू इंफिनिटी। e की पावर माइनस 6t इंटू एक्स, तो ये कितना आ जाएगा c1 e की पावर माइनस 5t प्लस c2, क्या ये वैल्यू जीरो को अप्रोच करेगी, दैट विल गोस टू द जीरो, फाइन। पर ये तो आपके पास जरूरी नहीं है ना जीरो को जाए, बिकॉज फॉर ऑल बोला है इन्होंने, फॉर ऑल एक्स नोट। तो अगर मैं एक्स नोट में ऐसा ले लूं जिसकी वजह से c2 की वैल्यू 3 आ जाए, देन दिस नंबर विल नेवर गोस टू दी जीरो, तो सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो कैंसल। फॉर ऑल बोला है, अगर फॉर सम लिखा होता फाइन तो आप ले सकते थे ऐसा एक्स नोट जिसमें c2 की वैल्यू भी जीरो आ जाती। लुक एट द थर्ड ऑप्शन, e की पावर माइनस ऑफ टी, तो जैसे e की पावर माइनस ऑफ टी करेंगे सो दैट विल बी c1 c2 e की पावर 5t, तो ये तो पहले इंफिनिटी को चला जाएगा,
अच्छा ये इन्फिनिटी जा रहा है, तो क्या ये हमेशा इन्फिनिटी को जाएगा? अगेन नॉट पॉसिबल। हो सकता है कि मैं कोई ऐसा, अगेन यहाँ पे फॉर ऑल बोला है, फाइन, अगर मैं कोई ऐसा एक्स नॉट ले लूं जिससे C2 की वैल्यू 0 आ जाए और C1 की वैल्यू फाइनाइट आ जाए, लेट्स से 5, तो ये किसको कन्वर्ट करेगा? इट्स अ 5 बट नॉट एज द इंफिनिटी। या अगेन से फॉर ऑल बोला है, सो दैट इज अगेन नॉट करेक्ट आंसर। लुक एट द लास्ट ऑप्शन। अब एक ही ऑप्शन बचा, दैट्स अ करेक्ट ऑप्शन, बट इसको भी चेक करवा देता हूं मैं। e की पावर -10 करेंगे, so e की पावर -9, e की पावर -6 माइनस दैट्स 4 ऑफ t। सो एज फॉर ऑल एक्स नॉट, तो चाहे C1 C2 की कोई मर्जी वैल्यू हो, चाहे वो 0 है चाहे वो फाइनाइट है, बिकॉज ऑफ दिस क्वांटिटी ये वैल्यू किसको चला जाएगा? 0। दिस इज ऑल्सो 0। सो वेदर द C1 and C2 आर 0 और नॉन 0, दैट इज ऑलवेज गोज टू द 0। सो दिस द फोर्थ इज माई राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। फाइन। तो इसी तरह से आप मोर क्वेश्चन इस स्टडी स्टेट वाले लेक्चर में सुन सकते हो आप। चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन। x1 and x2 are the solution of the initial value problem. You can see it's a July 2024 and again t tends to infinity, t tends to infinity. I can apply the steady state solution. Fine. So as t tends to infinity, e की पावर माइनस ऑफ t will goes to the 0 और ये भी 0 है, ये भी 0 है, so that implies minus x1 plus x2 will be 0, minus x1 minus x2 will be 0, and if you solve them you will get x1 and x2 both as my 0. तो जैसे x1 and x2 0 हुए, by using the relation r goes to the 0 as t tends to infinity. फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। लुक एट द फोर्थ ऑप्शन, r e रेज टू पावर t। तो r तो आपका 0 को जा रहा है, बट when t tends to infinity, तो that's my, you can't say that it whether it goes to the 0 or goes to the infinity. तो इसका मतलब ये हम यहां पे नहीं लगा पाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे अब। फाइन। तो देयर इज नो इश्यू। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे? सब में r की वैल्यू, तो r यहां से सॉल्व कर लेते हैं। r स्क्वायर इज x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। नाउ यू कैन पुट द डेरिवेटिव, 2r dr by dt is 2x1 इंटू dx1 by dt। तो यहां से dx1 by dt की वैल्यू निकाल लो, माइनस x1 प्लस x2 e की पावर t प्लस 2x2 dx2 by dt माइनस x1 माइनस x2 e की पावर t। तो देखो यहां से 2 कॉमन आ गया, e की पावर t कॉमन आ गई, अंदर क्या रह गया? माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? माइनस r स्क्वायर। सो 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइन, एक r कैंसिल हो जाएगा। नाउ यू कैन सेपरेट देम, इस माइनस e की पावर t। फाइन। तो कितना होगी इसकी? दैट विल बी log ऑफ r which is minus e की पावर t plus c. Apply the initial condition. X is 1, x2 is 0, that implies r is my 1. So log 1 is 0, t is my 0, e raised to power 0, so c will be my 1. Fine. तो यहां से r की वैल्यू कितनी आ गई? e की पावर 1 minus e की पावर t is the required solution. अब आपको जो जो पूछा है निकालते जाओ बस। r of ln2, तो ln2 फिल करो, e की पावर ln2, so that will be 1 minus 2, e की पावर -1. First option, second is the correct, third is the wrong. Look at the last, r into t, e ये आपका r हो गया, into e की पावर t, so that will goes to, when t approaches infinity, this is the e raised to power minus infinity, that will goes to the 0 and that's goes to the infinity. So I can convert it into the L'Hopital rule. So e की पावर t divided by e की पावर t minus 1. Now that's a 0 by infinity form. Fine. अब आप L'Hopital rule लगा दो यहाँ पे. So that will comes to be e की पावर t, e raised to power t minus 1 into e की पावर t. So ये कैंसिल हो गया. So when t approaches infinity, e की पावर infinity,
that will goes to the 0. So yes, fourth is also the correct answer. So right answers are 1, 2 and 4 are the right answer of the problem. चलिए look at the next one. Again t tends to infinity है, तो एलोपिटल सॉरी स्टडी स्टेट लगा दें. फाइन, स्टडी स्टेट में ये तो 0 हो गया, e की पावर भी 0 हो गई, लेकिन यहां इंफिनिटी आ गया. इसका मतलब आप डायरेक्टली स्टडी स्टेट नहीं लगा पाओगे, बिकॉज मैंने इस लेक्चर में आपको कंडीशन बताई थी ना कब लगा पाओगे, तो यहां तो कंडीशन नहीं अप्लाई कर पा रहे. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको पहले थोड़ा सा सोल्यूशन निकालना होगा. सोल्यूशन भी कोई दिक्कत नहीं है. क्या बताया था मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कि जब भी आपको एक्सपोनेंशियल टर्म प्रेजेंट है, e की पावर अगर ax प्रेजेंट है, तो आपको क्या सब्स्टिट्यूशन करना है? ax/2. तो यहां पे दो टर्म्स प्रेजेंट है ना, तो मैं एक बार x ले लेता हूं, इसका हाफ कर दो, e की पावर t. फाइन, और कोई एक नया वेरिएबल ले लेते हैं u, और y का साथ ले लेते हैं -t/v. फाइन. अच्छा, मैं इस x के साथ नेगेटिव ले लेता हूं ना, नहीं तो ये e की पावर 3 बन जाएगा. इसको नेगेटिव ले लेता हूं, इसको पॉजिटिव ले लेता, ताकि ये सेम हो जाए. अब इन दोनों की वैल्यू यहां फिल कर दो, तो क्या बन गया? x प्राइम e की पावर -t u प्राइम माइनस t के साथ डेरिवेटिव करा मैंने. अच्छा, x की वैल्यू फिल कर दो, -4 e की पावर -2t इंटू, सो e की पावर -t इंटू e की पावर -t कैंसिल हो गया, तो आपके पास सोल्यूशन क्या बन गया? u प्राइम विच इज इक्वल टू 2 ऑफ u -4v. अब इसमें सेकंड वाले में फिल कर दो y प्राइम, t के साथ डेरिवेटिव करोगे e ऑफ t v प्राइम प्लस e ऑफ t का e ऑफ t इंटू v. e ऑफ 2 की पावर, इसको करेंगे e की पावर t इंटू u माइनस e की पावर t इंटू v. तो आपके पास क्या बन गया? v प्राइम इज इक्वल टू u -2v. बच्चों मैं फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूं आपको, अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल टर्म प्रेजेंट है तो आपको सोल्यूशन क्या लेना है? जो भी इसका एंगल है उसका हाफ. आप ये भी ले सकते थे बच्चों, देयर इज नो इश्यू. फाइन, पॉजिटिव, लेकिन जैसे आप पॉजिटिव लोगे तो ये बन जाएगा 3 और ये माइनस ऑफ, लेकिन आपको ऐसा बनाना है जिससे वो सेम बन जाए. आपका टारगेट है इसको कैंसिल करना, तो इसको मैंने माइनस ले लिया और इधर प्लस ले लिया. तो अब आपका सिस्टम क्या बन गया? ये दो बन गए. अब आप देखो, अब मैं स्टडी स्टेट लगा सकता हूं t टेंस टू इंफिनिटी पे. फाइन, अब मैं स्टडी स्टेट लगा सकता हूं ना, तो अब इसका सोल्यूशन मैट्रिक्स ए क्या बन गई आपकी? 2 -4 1 -2. यही बन गया ना आपके पास. इसको मैं कहीं पे मूव कर दूं अगर जरूरत पड़ेगी मेरे को ये. फाइन, तो इसकी आइगन वैल्यू निकालो. क्या आएगी आइगन वैल्यू? लैम्डा स्क्वायर, ट्रेस इज 0 और डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो 0. सो आइगन वैल्यूज आ गई आपकी 0,0. फाइन, और अगर आप सोल्यूशन में देखो आपको x इंटू वाई चाहिए, तो जैसे मैं x इंटू वाई करूंगा दैट इज नथिंग बट u इंटू वी ही रह गया. फाइन, तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया? जब आपके पास आपको इतना पता लग गया कि ये इसकी आइगन वैल्यूज 0 0 आ गई. फाइन, तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा? कैपिटल X, इट विल बी c1 प्लस c2 ऑफ t इंटू आइगन वेक्टर प्लस, बिकॉज आपके पास a की आइगन वैल्यू, अच्छा आइगन वैल्यू निकाल देते हैं. v1 इज आइगन वेक्टर, तो a माइनस लैम्डा आई, a माइनस लैम्डा आई ऑफ v1 is 0. फाइन, सो दैट विल बी 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 0. v1 मैंने क्या ले लिया? a एंड b. तो इसका मतलब a इज इक्वल टू, तो आपने क्या मान लिया? एक सोल्यूशन आपका हो गया b इज इक्वल टू 1, सो 2,1. फाइन, अब क्योंकि आपको इसका 2 क्रॉस 2 है तो सेकंड आइगन वेक्टर निकलेगा नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर. तो जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर क्या होता है? a माइनस लैम्डा आई. सेकंड आइगन वेक्टर निकालेंगे, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एज ए 0 आई मस्ट टेकन एज द आइगन वेक्टर ऑफ द प्रीवियस वन. तो ये कितना आपके पास? 2 1. फाइन, तो मतलब इसकी वैल्यू इंस्टेड ऑफ टेकन एज ए 0, अब यहां पे क्या आ जाएगा आपका? 2 1. फाइन, तो करो सॉल्व इसको. एक बार यहां पे 2 हो गया और a माइनस 2b इज इक्वल टू 1. तो क्लियरली से a इज 1, b इज इक्वल टू 0. तो सेकेंड आइगन वेक्टर आपका हो गया c2, जिसके साथ कोफिशिएंट ऑफ t लगाया है, इंटू v2. फाइन, तो सॉल्व कर दो बस.
फाइन, तो फिल कर दो C1 प्लस सी, अच्छा ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना हो गया ये V1 सॉरी V1 ये है और V2 आपका था 10, तो इसको मल्टीप्लाई करता हूं 2C1 2C2 T और इधर से C2 और सेकेंड कंपोनेंट को नीचे ले जा रहा हूं C1 प्लस C2T एंड 0। फाइन, तो पहली वैल्यू u है, सेकेंड v है, बिकॉज आपका डिफरेंशियल इक्वेशन u और v में बना था। तो फिल कर दो आप इसमें, ये तो बनेगा ना आपका। तो जैसे आप u इंटू वी करोगे तो देखो ये आपके पास क्या बनेगा, इसे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। फाइन, अच्छा फाइनाइटी तो पूछ रहे हैं आपसे, तो C1 C2 निकाल दो। कैसे निकलेगा C1 C2, एनी आइडिया? बाय यूजिंग द इनिशियल कंडीशन। फाइन, x ऑफ 0 1, दैट मीन्स u इज इक्वल टू 1, y ऑफ 0 1, v इज इक्वल टू 1, तो दोनों 1 1 पे निकाल दो। 1 इज इक्वल टू 2C1, t इज इक्वल टू 0 फिल करना ना, 0 प्लस C2 और 1 इज इक्वल टू C1। तो यहां से क्या हो गया, C1 विल बी 1 और C2 विल बी -1। इज इट ओके? C1 एंड C2 आपके पास आ गए, तो आपका सोल्यूशन क्या मिल गया, u विल बी 2 -1 इज 1 -2 इंटू टी और v आपका क्या हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, दैट्स टू C1 एंड C2 1। मैं इसकी भी थोड़ी सी कैलकुलेशन रिड्यूस करूंगा आपके लिए। फाइन, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए अपलोड जरूर करूंगा। तो आपको x और y चाहिए, तो यहाँ फिल कर दो। तो आपका सोल्यूशन क्या बन गया, x इज इक्वल टू 1 -2 इंटू टी ई की पावर माइनस ऑफ टी और y आपका हो गया 1 - t इंटू ई की पावर टी। फाइन, अब आप पहले ऑप्शन पे चलते हैं, अब सबको रेज कर दें। फाइन, पहले सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, x ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, रॉन्ग। x ऑफ हाफ इज इक्वल टू 0, सेटिस्फाइड। y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, सेटिस्फाइड। फाइन, अब x इंटू वाई करेंगे, दैट विल बी 1 - 2t 1 - t और इसको t स्केयर से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो कितना आ जाएगा, एस लिमिट t, तो कोफिशिएंट ऑफ द टी स्केयर देख लें कितना है, 2, तो पहला ऑप्शन कट गया। सो थर्ड एंड द फोर्थ आर माई राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। अगर आप और चाहते हो, मैं फिर कह रहा हूं, यू मस्ट वॉच अबाउट माई प्रीवियस लेक्चर्स, जिससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका काफी हाई होगा। अगर आपको कोई डाउट है या किस नेक्स्ट टॉपिक पे किस पे चाहते हो, लेट मी नो। आप इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट में सभी टॉपिक्स की लास्ट मिनट रीजन जरूर और जरूर देखिए। और आपके एग्जाम में 1 वीक पेंडिंग है, लास्ट मिनट 24 आवर्स, हाउ यू कैन अटेम्प्ट द एग्जामिनेशंस एंड हाउ यू कैन क्वालिफाई द CSIR नेक्स्ट स्ट्रेटेजी। ये 3 लेक्चर मस्ट सुनिए, जिससे आप इजिली समझ पाए क्या करना है आपको एग्जामिनेशन में। I hope you have really enjoyed this session too. I hope you can subscribe my YouTube channel. Let me know in the comment box if you have any doubt. Thank you very much, students. Best of luck. Happy learning.